جانے والوں کو تو یہ نور دیتے ہی دیتے ہیں، جو ان کی یاد میں تڑپتا ہے یہ ان کو بھی نوازتے رہتے ہیں۔ جو جا نہیں سکتا، اسباب نہیں ہے، وہاں پہنچ نہیں سکتا، یہ مکہ مدینہ ان کو بھی انوار تقسیم کرتے ہیں، ان کو بھی نور عطا کرتے ہیں۔ مکہ کی بات کریں تو وہاں خیر ہی خیر ہے، مدینہ کی بات کریں تو وہاں خیر ہی خیر ہے۔ آج ہم چاہیں گے کئی ایسے سعادت مند ہیں جو اس وقت کعبہ مشرفہ کے سامنے بیٹھے ہوں گے، کئی طواف کر رہے ہوں گے، کوئی حتیم میں کھڑا ہوگا تو کوئی رکن یمانی کو بوسہ دے رہا ہوگا تو کوئی رکن اسود کو چوم رہا ہوگا، کوئی باب کعبہ کو دیکھ رہا ہوگا تو کوئی مقام ابراہیم پہ کھڑا نوافل پڑھ رہا ہوگا، کوئی صفا مروہ کی سعی میں مصروف ہوگا تو کوئی نبی پاک علیہ السلام کی پہلی زوجہ ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حضور حاضری کے لیے جا رہا ہوگا، کوئی ولادت گاہ مصطفیٰ کی زیارت کر رہا ہوگا تو کوئی مکہ کے کس انوار کو حاصل کر رہا ہوگا، اور کئی زائرین اس وقت مدینہ پاک میں ہوں گے، کوئی گنبد خضرا کو تک رہا ہوگا تو کوئی جان عالم علیہ السلام کے مواجہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے حضور کو سلام پیش کر رہا ہوگا، کوئی ریاض الجنہ میں اس وقت بیٹھا ہوگا تو کوئی مسجد نبوی میں نفل پڑھ رہا ہوگا۔ عشاق اس وقت لاکھوں کی تعداد میں مکہ مدینہ کے سفر پر ہے، کوئی جا چکا ہے، کوئی جانے والا ہے اور کوئی طلب لے کے بیٹھا ہے، کوئی ان کی یاد میں رو رہا ہے تو کوئی سفر کرتے ہوئے آنسو بہا رہا ہے، کوئی وہاں پہنچ کے آنسو بہا رہا ہے۔ عشاق اللہ نے پیدا کیے ہیں اور یہ سلسلہ رہے گا۔ میں نے یہ موضوع اس لیے آج کے جمعہ میں رکھا کہ ہم اگر ابھی جا نہیں سکے تو ہم یاد تو کر سکتے ہیں نا، ہم اپنے تصورات کی وادیوں میں مدینے کو بسا سکتے ہیں۔ تصورات پہ تو کوئی قید ہی نہیں ہے، نہ اسے ویزے کی ضرورت ہے، نہ ٹکٹ کی ضرورت ہے، نہ اس کو اخراجات کی ضرورت ہے، بس اس کو تو نور کی ضرورت ہے، وہ انوار کی ضرورت ہے، تجلیات کی ضرورت ہے، ان برکات کی ضرورت ہے جو برکات امت کو محبوب کریم علیہ السلام کی دعاؤں کے صدقے اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو سب سے پہلے مکہ پاک اس کا ذکر مبارک کرتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے ذکر کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ جب فتح مکہ کے وقت مکہ میں پہنچے، اس سے پہلے جب ہجرت کر کے حضور جا رہے تھے 10 سال پہلے، جب آپ ہجرت کر کے مکہ سے رخصت ہونے لگے تو آپ ایک ٹیلے پہ چڑھے، صحابی رسول لکھتے ہیں آپ ایک ٹیلے پہ چڑھے اور مکہ کو دیکھنے لگے اور مکہ کو دیکھتے ہوئے فرمانے لگے اے مکہ مجھے تجھ سے پیار ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کے محبوب ٹیلے پہ کھڑا ہو کے پیار کیوں نہ ہو جہاں آپ کی ماں کا بچپنا گزرا ہو، آپ کے والد جہاں رہے ہو، آپ کے دادا جہاں رہے ہو، جہاں آپ کے جد اعلیٰ حضرت اسماعیل کے ننھے ننھے قدم لگے ہو، جہاں آپ کا خاندان بسا ہو، جہاں آپ نے بچپن گزارا ہو، جہاں آپ کی جوانی گزری ہو، جہاں آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین کا ڈنکا بجایا ہو، جہاں کعبہ مشرفہ ہو، جہاں انبیاء کے قدم لگے ہو، جہاں ہر وقت فرشتے انوار کی چادریں تانے کھڑے ہو، اس شہر کو چھوڑتے ہوئے تکلیف تو ہوگی نا۔ حضور فرماتے ہیں اے مکہ شہر مجھے تجھ سے پیار ہے، اگر یہ مجھے تنگ نہ کرتے اور مجھے جانے پر مجبور نہ کرتے اور اللہ مجھے اجازت نہ دیتا تو میں کبھی مکہ تمہیں چھوڑ کے نہ جاتا۔ مکہ سے حضور کو بڑا پیار تھا، بہت محبت تھی، اور پھر کئی لوگ نبی پاک علیہ السلام کی اس ہجرت کو بھی جو ہے آپ کی مجبوری کا رنگ دے کے پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں نبی کریم مجبور نہ تھے کہ مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے، یہ اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں کہ جب اللہ کا نبی ہجرت کر کے جاتا ہے تو فاتح ہو کے واپس آتا ہے، یہ حکمت تھی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام جب
ہجرت کے بعد آپ نے مکہ کو فتح کیا اور آپ کے سارے صحابہ موجود ہیں، تمام جو ہے وہ قریش کے سردار موجود ہیں، اہل مکہ موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت فرماتے ہیں اے لوگوں یہ مکہ ہے، یہ مکہ ہے اور رب تعالیٰ نے اس کو حرم یعنی بزرگ بنایا ہے۔ اس مکہ کو کیا بنایا ہے؟ بزرگ بنایا ہے۔ اور کیسی بزرگی اللہ نے عطا فرمائی؟ اس مکہ کو کیسی بزرگی عطا فرمائی؟ آج بھی اور قیامت تک اگر کوئی مسلمان میقات کے باہر سے مکہ جانا چاہتا ہے، چاہے وہ اپنے دوست کو ملنے جانا چاہے، چاہے وہ کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائے، تو فرمایا وہ مکہ جائے تو احرام باندھ کے جائے، احرام کے بغیر مکہ نہیں جا سکتا۔ یہ رب نے مکہ کو بزرگی عطا فرمائی۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ مکہ میں جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک امن رہے گا، یہاں امن رہے گا، اور امن ایسا رہے گا کہ یہاں قتال کوئی نہ کر سکے گا، جنگ کوئی نہ کر سکے گا، لڑائی کوئی نہ کر سکے گا۔ حضور فرماتے ہیں کسی نبی پر بھی اس مکہ کے اندر قتال حلال نہیں رکھا گیا سوائے میرے، کہ مجھے بھی تھوڑی دیر کے لیے اجازت دی گئی جب مکہ کو فتح کرنا تھا، تھوڑے وقت کے لیے اجازت دی گئی، اب وہ اجازت بھی واپس لے لی گئی۔ اب مکہ میں امن رہے گا، اب مکہ میں قرار رہے گا، مکہ میں چین رہے گا۔ مکہ کی سرحدوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں، مکہ کی سرحدوں پر فرشتے نور کی چادریں لے کے کھڑے ہوتے ہیں، مکہ کی طرف آنے والے ہر قدم کو جو ہے وہ فرشتے سلام کرتے ہیں، اور مکہ میں آنے والے ہر شخص کو رب کریم اپنی رحمتوں سے نوازتا چلا جاتا ہے۔ کتنا نوازتا ہے، آئیے سنیے اور خوش ہو جائیے۔ جو مکہ کی طرف جا رہے ہیں، جانے والے ہیں، خوش ہو جائیے میرے دوستو۔ مکہ وہ پیارا شہر ہے کہ جس کی طرف جو قدم اٹھتا ہے وہ سعادتوں کو اپنے ساتھ لے آتا ہے، برکتوں کو اپنے ساتھ لاتا ہے، عنایتوں کو اپنے ساتھ لاتا ہے۔ مکہ مشرفہ کے زائرین بھی کتنے قسمت والے ہیں، ان کی سعادت کو جو ہے وہ سلام ہے، اور ان کی قسمت پر قربان جاؤں کہ جب یہ مکہ شہر میں پہنچتے ہیں، اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس شہر کے لیے دعا کی وہاں پہنچتے ہیں، جناب اسماعیل علیہ السلام نے جہاں اپنے قدموں کے ذریعے جو ہے وہ زمزم ہمیں عطا کیا، وہ شہر میں جب پہنچتے ہیں احرام کی حالت میں کعبے کے سامنے جاتے ہیں۔ ابھی تو توسیع ہو چکی ہے اور دور سے ہی ایک دو گیٹ تو بن چکے ہیں اور باقی ابھی تیار ہو رہے ہیں۔ ابھی ڈیزائن ایسا ہے کہ آپ دور سے ہی جب مسجد الحرام میں پہلا قدم رکھتے ہیں تو آپ کو سامنے کعبہ نظر آ جاتا ہے، کعبہ نظر آ جاتا ہے، اس شاخ کا روحانی مرکز نظر آ جاتا ہے، انوار کی تجلیات کا مرکز نظر آ جاتا ہے۔ اور وہ کعبہ جب بندہ نگاہ اٹھاتا ہے، قربان جاؤں مکہ جانے والوں پر، قربان جاؤں عمرہ کرنے والوں پر، قربان جاؤں اللہ کے گھر دیکھنے والوں کو پر، کہ اللہ اکبر جو ہی نگاہ پڑتی ہے اور بندہ شرمساری میں اپنا سر اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے، نگاہ کھولتا ہے، آنکھیں کھلتی ہیں، سامنے کعبہ ہوتا ہے۔ فرمایا اب اس کی آنکھ کی پتلی کعبے کے سامنے ہے اور اس کی زبان پر اللہ کا نام ہے، اور اللہ نے اس کے اوپر اپنی رحمتوں کے دروازے اس طرح کھول دیے ہیں، اپنے انوار کے دروازے اس پر ایسے کھولے ہیں کہ اس کی آنکھ کی پتلی کعبے کو دیکھ رہی ہے، زبان اس کا کرم مانگ رہی ہے، اور رب کا وعدہ ہے اب میرا کعبہ تمہارے سامنے ہے، مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں عطا کر دوں گا، میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ اس ٹائم کوئی دعا رد نہیں ہوتی جب کعبہ سامنے ہو، جب کعبے کی دیوار سامنے ہو پھر رب کوئی دعا رد نہیں کرتا۔ کیسے رد کرے؟ نبی پاک کی حدیث سنیے، زائرین جب حج و عمرہ والے وہاں پہنچتے ہیں، حدیث مبارک میں آیا رب روزانہ 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کتنی رحمتیں؟ 120، جس میں 60 رحمتیں صرف طواف کرنے والے کو اللہ عطا کرتا ہے۔ یہ خاص
50 रहमतें हैं सिर्फ तवाफ करने वाले को, और 40 रहमतें वहां नमाज पढ़ने वालों को, और 20 रहमतें सिर्फ काबे को देखने वालों को। वो कोई काम नहीं कर रहे। अरे जमाने में कोई ऐसी इमारत है, किसी बादशाह का ऐसा घर है जमाने में कि जिसको आप देखें और आपको रहमत मिले, वो रब का घर है, वो काबा मुशर्रफा है कि जिसको देखने वालों को रब 20 रहमतें अता फरमाता है। अल्लाह अल्लाह, वहां शर्मसारी में पांव उठते हैं, बंदा अपनी किस्मत पर एक तरफ नाज करता है, दूसरी तरफ रोता है, ऐ अल्लाह मैं खताकार, मैं ऐसियां शार, मैं गुनाहगार, मेरी जिंदगी गुनाहों में बीत गई और तूने मुझे अपना घर दिखा दिया, तूने मुझे उस जगह पैर रखने की सआदत बख्शी जहां तेरे नबी आए, जहां तेरे महबूब के सहाबा आए, जहां कुतुब अब्दाल आए और आ रहे हैं। क़यामत तक ये औलिया तवाफ करते रहेंगे काबे का, और हर वक्त वहां कुतुबों के डेरे लगे रहेंगे। ऐ अल्लाह मुझ खताकार को यहां पहुंचा दिया, मेरे कदम यहां लगा दिए। अल्लाह अकबर। फिर वो लम्हा आता है कि बंदा याद करता है कि नबी पाक भी आए थे, हुजूर भी आए थे। सहाबा कहते हैं नबी करीम जब आए ना मक्का में, आप जब उम्रा करने लगे, तवाफ शुरू करने लगे, हुजूर ने सारी अदाएं जो है वो अपनाई कि मेरी उम्मती जो है इन अदाओं को अपना के मेरी सुन्नत पर अमल कर लें। कभी हुजूर तवाफ करते हुए जब हजर अस्वद पर आते तो यूं हाथ रखते और उसको चूम लेते, और कभी नबी पाक अपना असा मुबारक, लाठी मुबारक उस पर लगाते और फिर उसको चूम लेते। कभी हुजूर दूर से यूं हाथ करते और उसको चूम लेते। आपको पता था, कहते हैं इनको तो पता नहीं है कि बाद में क्या होने वाला है। ऐ अल्लाह के बंदो, पहले तो लोग ही थोड़े से होते थे, हुजूर हर वक्त चूमते, लेकिन मेरे और आप पर उन्होंने रहम किया, हम पे रहम किया कि लाखों लाख मेरे उम्मती आएंगे, मुसलमान आएंगे, उशाक आएंगे, जम्मे गफीर होगा, बूढ़े भी आएंगे, बीमार भी आएंगे, कमजोर भी आएंगे, कव्वी भी आएंगे, हर कोई हजर अस्वद को चूम न सकेगा। हुजूर जाने आलम ने दूर से जो है वो उसको हाथ का इशारा करके चूम लिया और अपनी उम्मत को ये सुन्नत अता कर दी। ऐ लोगों, तुम बीमार हो तो घबराओ ना कि मेरे महबूब ने चूमा था, मैं कैसे चूमूं। अगर बीमार हो तो घबराओ ना, दूर से हाथ कर लो, मुझ मोहम्मद की सुन्नत अदा हो जाएगी, मुझ मोहम्मद की सुन्नत अदा हो जाएगी। हुजूर अलैहिस्सलाम अब तवाफ करने लगे हैं। नबी पाक अपना सीना चौड़ा करके रमल करके काबे के गिर्द चल रहे हैं। क्या वो मंजर था, क्या वो मंजर था। हुजूर को मजबूर समझने वाले देख रहे हैं। हुजूर नबी करीम को मक्का से जो है वो सोचने वाले कि हमने निकाल दिया है, अब देख रहे हैं अल्लाह का महबूब जो है वो यूं सीना तान के आपके सहाबा व रमल करते हुए चल रहे हैं और बता रहे हैं, ऐ लोगों, जो रब से मोहब्बत करता है वो मजबूर नहीं होता, मुख्तार होता है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। जो रब से मोहब्बत करता है वो मजबूर नहीं होता, जो अल्लाह का हबीब हो वो मजबूर नहीं होता, जो अल्लाह का महबूब हो वो मजबूर नहीं होता। आप अमल फरमा रहे हैं, ये यादें ताजा होती हैं जब बंदा उम्रा कर रहा होता है। ये बरकतें, ये सारे ख्यालात इन यादों को याद करके पाकीज़ा होते हैं। और फिर कुर्बान जाए, हुजूर फरमाते हैं अब तवाफ करने वाला एक पैर उठाता है, एक पैर उठाता है तो रब इसको कितनी नेकियां अता करता है? 70,000 नेकियां अता फरमाता है। हर कदम पर उसको 70,000 नेकियां अता की जाती हैं, बदियां मिटाई जाती हैं, दर्जात बुलंद किए जाते हैं। अल्लाह अकबर। और फिर जब वो हजर अस्वद से शुरू होता है, बाबे काबा क्रॉस हुआ, फिर आगे चलते चलते जो है वो रुकने इराकी और शामी क्रॉस हुआ, हतीम से गुजर के बंदा यूं आया और यूं आते आते फिर जो है वो चौथा रुकन आया, रुकने यमानी आया। अल्लाह अल्लाह, रुकने यमानी जब आता था तो हुजूर उसको भी चूम लिया करते थे, रुकने यमानी को भी चूम लेते थे। अब रुकने यमानी के ऊपर रब ने 70 फरिश्तों की ड्यूटी लगा रखी है। और बाद उलमा ने कहा इस पूरी दीवार पर रुकने अस्वद और रुकने यमानी के दरमियान जो दीवार है इसको मुस्तजाब कहते हैं। बाद बुजुर्गों ने कहा कि यहाँ 70,000 फरिश्ते होते हैं। और बंदा जब ये कहता है
अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़िया फिद दुनिया वल आखिरा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाब। जो है तो अता फरमा दे, तेरे बंदे जो मांग रहे हैं तो अता फरमा दे, तेरे बंदे जो खैर मांग रहे हैं अता कर दे। मुझे बताएं, उन्होंने तो कोई बदी नहीं की है, कोई बुराई नहीं की है, वो तो अल्लाह की याद में मस्त हैं। जब वो कहेंगे अल्लाह इनको अता कर देना, अल्लाह भी कितना प्यारा है, वो अता वैसे भी कर सकता है, लेकिन कैसे नाज बनाए हैं, कैसे अपने बंदों पर रहमतों के दरवाजे खोले हैं कि उनकी सिफारिश के लिए पाकीज़ा फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया है कि इनकी सिफारिश करो ताकि पता चले मैं अपने मेहमानों की कितनी इज्जत फरमाता हूं। और फिर हदीस मुबारक में आया कि जब बंदा हजर अस्वद को चूमता है, यह हजर अस्वद उसकी शक्ल को याद कर लेता है। अल्लाह अकबर। कहते हैं मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम के पास कितना इल्म है। अरे ये तो पत्थर है, पत्थर नबी से तो बड़ा नहीं हो सकता ना, पत्थर नबी से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि ये जो पत्थर है, जन्नती पत्थर, ये अपने इस्तिलाम करने वाले की शक्ल याद कर लेता है। अच्छा, शक्ल तो याद कर ली, देख लिया, अब हम लाखों लाख रोजाना जा रहे हैं, जाते रहेंगे, करोड़ों अरबों लोग हज उमरा करेंगे। मैदान माशर में अल्लाह जल्ला व अला इसको आंखें भी अता फरमाएगा और जबान भी अता फरमाएगा, और ये कहेगा अल्लाह इस बंदे ने मेरा इस्तेलाम किया था, मुझे बोसा दिया था, ए अल्लाह मैं इसकी सिफारिश करता हूं, और रब हजर अस्वद की सिफारिश कबूल फरमा के वहां जायरीन को इसके साथ जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ये है मक्का मुअज्जमा। और यहां आने वालों की क्या बात, हर बंदा अपने अपने तरीके से जाता है। हजरत शेख शिबली भी मक्का पहुंचे तो किस अंदाज से मक्का पहुंचे। आपने जब तवाफ कर लिया ना और सही करने लगे, जब सही करने लगे और वहां सफा मरवा पे दौड़ने लगे और वहां सब्ज लाइटों को क्रॉस करके आगे जब गए ना, तो अल्लाह से कहने लगे, ऐ अल्लाह, ऐ जो मक्का जाने वाले दोस्तों, उनके लिए ये मैसेज है, और जो इरादा रखते हैं उनके लिए भी ये पैगाम है, मक्का जाओ तो दिल को यूं पाक करके जाओ जैसे हजरत शेख शिबली पाक करके गए। क्या कहते हैं, ऐ प्यारे अल्लाह, ऐ सोहने अल्लाह, मैंने अपने दिल पर तेरी मोहब्बत की मोहर लगा दी है। मोहर लगती थी, खत के ऊपर मोहर लगती थी कि अब खत को खोल नहीं सकता सिवाय जिसकी तरफ भेजा जा रहा है। हजरत शेख शिबली कहते हैं, ए अल्लाह, मैंने अपने दिल के दरवाजे पर तेरी मोहब्बत की मोहर लगा दी है, अब तेरे अलावा मेरे दिल में कोई नहीं आ सकता, तेरे अनवार के अलावा मेरे दिल में कोई नहीं आ सकता, मेरे दिल में अब तेरा नूर आ सकता है, तेरी याद आ सकती है। ए अल्लाह, मैंने अपने दिल के ऊपर तेरी मोहब्बत की मोहर सबत कर दी है। जो भी मक्का जाते हैं, काश इस इरादे से जाएं, इस याद से जाएं, इस मस्ती से जाएं कि जिसके काबे के सामने खड़े हैं उसकी मोहब्बत का राज हो बंदे के दिल पर, उसकी याद का राज हो बंदे के दिल पर, उसके नूर का राज हो बंदे के दिल पर, और फिर गैर दिल में दाखिल ना हो, दुनिया की दौलत की मोहब्बत दिल में दाखिल ना हो, दुनिया की याद की मोहब्बत दिल में दाखिल ना हो, इधर उधर की चीज दिल में दाखिल ना हो। अरे तुम्हारा रब तो इतना करीम है, इतना करीम है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने जब हज कर लिया, हज करने के बाद मैदान अरफात में मुझे ऊँघ आ गई और मैंने देखा कि दो फरिश्ते बातें कर रहे हैं। एक दूसरे से पूछता है, यार इस दफा हाजी कितने आए हैं? कहा 6 लाख हाजी आए हैं। पूछा कि अल्लाह ने कितनों की हज कबूल की है? दूसरा फरिश्ता जवाब देता है, अल्लाह ने 6 लोगों का हज कबूल किया है। 6 लाख में से कितनों का हज कबूल किया है? 6 लोगों का हज कबूल किया है। और फिर दूसरा फरिश्ता कहता है, घबराने की बात नहीं है, उन 6 के सदके अल्लाह ने 6 लाख को कबूल फरमा लिया है। अल्लाह इतना प्यारा है, इतना प्यारा है। अरे हमारी गलाजतों के बावजूद हमें कबूल करने वाला, हमारी नाफरमानियों के बावजूद हमें कबूल करने वाला, हमारी खताओं के बावजूद हमें कबूल करने वाला, हमारी नालायकियों के बावजूद हमें अता करने वाला, हमारी बुराइयों के बावजूद अपना नूर अता करने वाला। तो बंदा हो जाए उसके साथ खालिस, बंदा हो जाए उसके साथ अंदर से पाक। वो एक बुजुर्ग ने बड़ी अच्छी बात लिखी, उन्होंने कहा भी आपकी गाड़ी खराब हो जाए, वो खराब हो गई, उसका इंजन बैठ गया, तो अब अगर आप 10 दफा उसके ऊपर पेंट कर लेते हैं
क्या वो गाड़ी ठीक हो जाएगी? उसका ऊपर रंग और रोगन 10 दफा बदल लेते हैं तो क्या गाड़ी ठीक हो जाएगी? नहीं ठीक होगी ना। इंजन ठीक करना पड़ेगा, अंदर ठीक करना पड़ेगा। वो एक बुजुर्ग, पंजाबी बुजुर्ग कहते ना, मक्के जाया गल नहीं हो बढ़ती जो अंदरू ना मुकाये हो, कि जब अंदर अंदर गलाजत रहती है, अंदर का इंजन खराब रहता है, अंदर अंदर बुराई रहती है, तो फिर जितनी दफा भी मक्का जाए, जो अपनी बहन को मार के मक्का गया, जो अपनी माँ को जलील करके मक्का गया, जो अपने बाप को रुला के मक्का गया, जो किसी की जमीन पर कब्जा करके मक्का गया, जो किसी की जायदाद लूट के मक्का गया, जो कर्जा दबा के मक्का गया, जो किसी के हकूक दबा के मक्का गया, तो उसको सोचना चाहिए कि मक्का आया हूं तो मक्के वाले ने तो मुझे कहा था मेरे बंदों से प्यार करके आना, मेरे बंदों को मना के आना, मेरे बंदों को राजी करके आना, मेरे बंदों को सीने लगा के आना, अपने बाप की दुआ लेके आना, अपनी माँ की दुआ लेके आना, अपनी बहन की दुआ लेके आना। लेकिन तू तो सबको रुला के गया है, अब वहां रोता रहे, वहां रोना तेरा काम नहीं है। मक्का जाने से पहले अल्लाह के बंदों को मना के मक्का जा, तो फिर रब तुझे वहां से वली बना के वापस फेरेगा। मक्का में तो बड़ा नूर है। और वहां एक और बुजुर्ग की बात बताता हूं ताकि ये सफर हमारे लिए जब भी हो तो ज़ौक़ अफ़ज़ा सफर हो। हजरत अबू हुसैन दर्राज कहते हैं कि मैं मक्का गया, हज के लिए जा रहा था, रास्ते में एक मकाम पर मैंने नमाज वगैरह पढ़ी, तो वहां मुझे एक जो है वो कोड़ी शख्स, मजजूम, कोड़ का मर्ज जिसे होता है, वो बंदा मुझे मिला और उसने मुझे कहा यार तू मक्का जा रहा है तो मुझे भी साथ ले ले। तो उसके मर्ज की वजह से, जख्मों की वजह से मुझे गिन आई। और अबुल हुसैन दर्राज रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैंने कहा नहीं, मैंने भाई तुझे अपने साथ नहीं ले जाना, मैं कैसे तुम्हें ले जाऊंगा। कहते हैं कि उसने कहा यार टेंशन ना ले, मैं कमजोर हूं, बात सुने, मैं कमजोर हूं लेकिन मेरा रब जब चाहता है तो कमजोरों को ताकत अता कर देता है, तो घबरा ना, मैं तेरे ऊपर बोझ ना बनूंगा। अबुल हुसैन दर्राज कहते हैं मैंने कसम उठा ली कि मुझे रब की कसम है मैं तुम्हें अपने साथ न रखूंगा। कहा ठीक है भाई तेरी मर्जी। तो वो कहते हैं कि मैं वहां से चल निकला, जब आगे एक मकाम पर मैंने आराम किया, बड़ा तेज तेज दौड़ रहा था कि मक्का पहुंचूं, हज के लिए पहुंचूं, और अपना सफर तेजी से कर रहा था। अगली बस्ती में पहुंचा तो वो कोड़ी बुजुर्ग वहां पहले से खड़े हुए थे, वह पहले से खड़े हुए थे और मुझे कहने लगे मैंने कहा था ना रब कमजोरों को चाहे तो कुव्वत अता करता है। ऐ मक्का जाने वालों, रब की मोहब्बत का चराग अपने सीनों में रोशन करो। खुदा की कसम ये नमाज, ये रोजा, ये हज, ये ज़कात, ये इबादत जरिया रखी गई है रब तक पहुंचने के लिए। ये मकसूद हकीकी नहीं है, तेरे सजदे मकसूद हकीकी नहीं है। कभी सजदे में जाके रब के हुजूर हाजिर हुआ है तू, कभी तूने हाथ बांध के रब के हुजूर हाजिर हुआ है। अपने आप को रब के दरबार में पेश कर, रब के हुजूर बिल्कुल पुख्ता इरादे से पेश हो जा, फिर देखना रब तेरी नियतों को कैसे खालिश करता है, फिर रब तुझे अपना करार कैसे अता करता है, फिर रब तुझे अपना नूर कैसे अता करता है। कहते हैं जिस मंजिल पर पहुंचूं वो मरीज मुझसे पहले वहां खड़ा हुआ हो। और फिर मैं घबरा गया और मैंने हाथ जोड़ के कहा कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो और मुझे अपने साथ रख लो, मुझे माफी दे दो, मैंने गलती की, आपको अपने साथ नहीं रखा। अरे किसी से नफरत ना करो, कौन कहां पहुंचा हुआ है मैं नहीं जानता। किसी के चेहरे को ना देखो, किसी के रंग को ना देखो, किसी के रूप को ना देखो, किसी की किसी चीज को ना देखो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कौन मकबूल है हम नहीं जानते। अरे नफरतों के दरवाजे बंद कर दो, ये एक दूसरे का बुग़्ज़ खत्म कर दो, एक दूसरे का हसद खत्म कर दो। ये फलाने का पीर है मैं इससे प्यार नहीं करूंगा, ये फलाने का मुरीद है मैं इससे प्यार नहीं करूंगा, ये फलानी बिरादरी का मैं इससे प्यार नहीं करूंगा, ये फलाने खानदान का मैं इससे प्यार नहीं करूंगा, ये फलाने इलाके का है मैं इससे प्यार नहीं करूंगा, ये फला मेरी कोस्ट में फला कोस्ट का है मैं इसको सदका नहीं दूंगा, ये मुहाजिर है मैं इसको नवाजूंगा नहीं, ये पंजाबी है मैं इसको सीने से नहीं लगाऊंगा। अरे नफरतों के ये बीज आज के इंसान ने बोए हैं। मोहम्मद अरबी तो मोहब्बतों के चराग रोशन करके गए हैं। मोहम्मद अरबी का दीन मोहब्बतों का दीन है, मोहम्मद अरबी का दीन नफरतों का दीन नहीं है। मोहम्मद अरबी के दीन में तो नूर ही नूर है, खैर ही खैर है। अरे बदअमनी फैलाने वाली सियासी जमातों शर्म करो, ऐ मजहबी तबकात जो नफरतें फैलाते हो तुम भी शर्म करो और आओ मोहम्मद अरबी के दीन को अपने ऊपर नाफिज करो। रसूलुल्लाह मैदान माशर में खुदा
कसम ये देख के नहीं नवाजेंगे, ये मेमन आ गया दे दूं, ये पंजाबी आ गया दे दूं, ये मुहाजिर आ गया दे दूं, ये पश्तून आ गया दे दूं, ये पठान आ गया शफात कर दूं, और ये मैं जो हौज़े कौसर का प्याला दे दूं। ना ना, हुजूर ये देखेंगे मेरा कलमा पढ़ने वाला आ गया है, मुझसे मोहब्बत करने वाला आ गया है, मुझसे प्यार करने वाला आ गया है, मेरा नाम लेने वाला आ गया है, मेरे नाम पर कुर्बान होने वाला आ गया है। और आज खुदा की कसम नफरतों ने हमारे मुआशरे का बड़ा गर्क करके रख दिया है। हर सियासी जमात ने नफरत का एक बीज बो रखा है, हर सियासी जमात ने। और इसी तरह जो है वो ये नफरतों के सौदागर आगे नफरतें बांटते चले जा रहे हैं। अल्लाह की पनाह। तो वो माफी मांगते हैं कि हुजूर माफ कर दो, मैंने गलती की है, मैं तो आपके साथ रहना चाहता हूं। उन्होंने क्या आगे से जवाब दिया, भाई तुमने तो कसम खाई थी, तुमने तो कसम खाई थी कि मैं साथ नहीं रखूंगा, अब मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी कसम टूट जाए। आगे से क्या कहा, मैं नहीं चाहता तुम्हारी कसम टूट जाए। फिर कहते हैं कि मेहरबानी ऐसी कर दें कि मक्का मदीना में जहां जहां अहम मौके हों मुझे जरा अपनी जियारत तो करवा दीजिएगा, मुझे अपनी जियारत करवा दीजिएगा। चले गए, कहा ये वादा तुम्हारा मैं पूरा करूंगा। अल्लाह अकबर। काबा मुशर्रफा का तवाफ किया। हजरत अबू बकर कत्तानी, हजरत अबुल हसन मुज़य्यन से इस बंदे की मुलाकात हुई, अबुल हुसैन की दर्राज की मुलाकात हुई, और कहा यार एक मजजूम कोड़ी शख्स मिला था और बड़ा अजीब मामला हुआ, जहां जाता था वो पहले मुझसे पहुंचा हुआ होता था। कहते हैं दीवाने तुझे पता नहीं, वो अबू जाफर मजजूम है, अल्लाह के वली हैं, उनकी जियारत को तो वली तरसते हैं, तुम्हें वैसे ही जियारत हो गई है। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि मैं जब रमी कर रहा था, हज के वक्त रमी कर रहा था, शैतान को कंकरियां मार रहा था, तो मेरा किसी ने पीछे से इहराम खींचा, मैंने पीछे देखा तो वो हजरत अबू जाफर वहां खड़े थे। इतना रश होता है, वहां पहुंचे हुए हैं, और फिर ये वही लफ्ज उन्होंने बोले, मैंने कहा था ना रब जब कमजोरों को कुव्वत देता है तो बड़ी कुव्वत अता करता है। अल्लाह 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 अल्लाह, हर वक्त अल्लाह का नाम लेने वाले, अपनी ताकतों को अल्लाह के सुपुर्द करने वाले, अपने कारनामों को अल्लाह के सुपुर्द करने वाले, अपनी बातों को अल्लाह के सुपुर्द करने वाले। आज मैं बयान अच्छा करूं तो वहां बोलता रहूं नहीं नहीं मुझे बड़ा फल हासिल है, नात अच्छी पढ़ूं तो मैं कहूं नहीं नहीं बड़ा मुझे अल्लाह ने, मुझे गला बड़ा है, मेरा जबरदस्त गला है। अगर मैं जो है वो दौलतमंद हूं तो दौलत पे नाज करता हूं। अगर आज का इंसान पावर में है तो अपनी ताकत और अपने ओहदे और अपनी जहानत और फतानत और इल्म और अकल और कलम पे नाज करता है। और एक ये थे जिनको नाज रब पे नाज था, अल्लाह पे नाज था, अल्लाह की मोहब्बत पर नाज था। अल्लाह अकबर। ये बातें तो चलती रहेंगी। अब मेरे चूंकि दो मौजू थे, मदीने का भी मौजू है और वक्त कम है, मदीने की बात हो और चंद मिनट में वो पूरी हो जाए, ये तो हो नहीं सकता ना। हुजूर जाने आलम मदीने हो और फिर नबी पाक मदीने में आराम कर रहे हो। मक्का मुअज़्ज़मा की बातें तो आपको मैंने सुना दी और ये कुछ काट कर सुनाई है, पूरी तो सुना नहीं सकता था, टाइम थोड़ा है। अलग अलग मौजू पर भी कलाम करता, लेकिन चूंकि मेरे पास यहाँ जुमे थोड़े हैं, ईद के बाद तो मैंने चला जाना है, तो मैंने चाहा कि ये सहूर हासिल हो जाए। बंदा अब हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके हो अब काबे का काबा देखो। अब बंदा उधर जा रहा है कि जिसकी इल्तिजा काबा भी जाहिर से करता है, बेलिया जा रहा है मेरा भी सलाम कहना, मिजाबे रहमत भी कह उठता है, बाबे काबा भी कह उठता है, हतीमे काबा भी कह उठता है, मुस्तजाबो मुस्तजार भी जिसकी तमन्ना में जो है वो गिरफ्त है, और वो भी चाहते हैं कि वो वक्त कब आएगा कि हुजूर हमारे सामने आके नमाज पढ़ेंगे। हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम के जलवे देखने के लिए वो काबा भी कहता है हमारा सलाम कहना। हुजूर जाने आलम की तरफ अब जाहिर बढ़ता है, मदीने की तरफ बढ़ता है, उस मदीने की जानिब कि हुजूर नबी करीम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुन लो, मेरे मदीने की सरहदों पर फरिश्ते पहरा दे रहे हैं, फरिश्ते पहरा दे रहे हैं, और यहां कभी भी दज्जाल दाखिल ना होगा। हुजूर फरमाते हैं दज्जाल मदीने की सरहद के बाहर आएगा और फिर मदीने में अल्लाह जलजले बर्पा करेगा, 3 जलजले आएंगे, और जो मुनाफिक और काफिर होगा वो डर के दज्जाल से मिल जाएगा और फिर मदीना पाक हो जाएगा। उस वक्त मदीने में कोई मुनाफिक ना होगा, कुर्ब क़यामत में सब उश्शाक होंगे, मोहब्बत करने वाले होंगे, प्यार करने
वाले होंगे, वो शाक होंगे। और हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं मेरा मदीना वो मदीना है जिसमें आने वाले को ये मदीना ऐसे पाक कर देता है जैसे भट्टी लोहे को मैल से पाक कर देती है। मदीने में जाने वाला गुनाहों से अपने आप को पाक करवा लेता है, उसकी सोचें पाकीज़ा हो जाती हैं। मदीने की फजा में तहारत, मदीने की हवा में अनवार, मदीने के जर्रे जर्रे में नूर और शिफा रब ने रख दी है। हुजूर जाने आलम जब भी किसी गजवे से वापस मदीने को लौटते तो अपनी सवारी को तेज कर देते। अल्लाह अल्लाह, मदीने के दरवाजे की तरफ आते हुए अपनी सवारी को तेज कर देते। जब सवारी तेज होती, गर्द उठती, तो गर्द उठते हुए एक सहाबी ने अपने मुंह पर इमामे का शिमला रख लिया। हुजूर ने हटाया और कहा कि इस मट्टी को मत रोको, इस मट्टी में मेरे रब ने शिफा रखी है, इस मट्टी में शिफा रखी है। अरे शिफा क्यों ना हो, जहां हुजूर ने सांस ली हो, जहां हुजूर के कदम लगे हो, जहां हुजूर ने बातें की हो, जहां नबी पाक चले हो, जहां नबी पाक मुस्कुराए हो, जहां नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है अपने सहाबा को बरकत तकसीम की हो। हुजूर जाने आलम हाथ उठाते हैं और कहते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, हजरत उमर फारूक आजम आए और मक्की सहाबा आके कहते हैं, मुहाजिर सहाबा आके कहते हैं हुजूर मक्का बड़ा याद आता है, मक्का बड़ा याद आता है, मक्के की याद तड़पाती है, मक्के की याद रुलाती है, मेहरबानी हो जाए, इनायत हो जाए। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। हुजूर ने हाथ उठाए और कहा कि हे अल्लाह हमें मदीने से प्यार दे दे, हमें मदीने से प्यार दे दे, जितना तूने मक्के से प्यार दिया उससे दो गुना प्यार अता कर दे। अल्लाह अकबर। उसके बाद इतना प्यार हुआ, इतना प्यार हुआ कि उनके मजार मदीने में बने, वापस न गए। ये मदीना है। हुजूर फरमाते हैं जब भी फल पकता ना, नबी पाक के पास सहाबा लेके आते, अरे तुम क्या समझो दीन क्या है, दीन अदब का नाम है। हुजूर के पास फल ले आते थे और कहते थे हुजूर ये मदीने का पहला फल है, आप दुआ कर देना। फिर नबी पाक हाथ उठाते और कहते ऐ अल्लाह मदीने में हमारे लिए बरकत दे दे, ऐ अल्लाह मदीने की खजूरों में हमारे लिए बरकत दे दे, मदीने के मुद्दोसा में हमारे लिए बरकत दे दे, मदीने के इन पैमानों में हमारे लिए बरकत दे दे। और फिर हुजूर एक बात करते थे बड़ी मोहब्बत भरी, रब से कहते थे ऐ अल्लाह तेरे इब्राहिम तेरे नबी और खलील हैं, उन्होंने मक्का के लिए तुझसे दुआ की थी, मैं तेरा बंदा और नबी हूं, मैं तुझसे मदीने के लिए दुआ करता हूं, तू मदीने को नूर अता कर दे। अल्लाह अल्लाह, दुनिया बड़ी हसीन है। मैंने शुरू में जुमला बोला था, रब ने बड़े खूबसूरत आबशारों खलियान पैदा किए हैं, बड़ी वादियां खूबसूरत पैदा की हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ पैदा किए हैं। अरे स्विट्जरलैंड की वादी भी बड़ी खूबसूरत है, यूरोप के इलाके भी बड़े खूबसूरत हैं, कश्मीर की वादियां भी बहुत खूबसूरत हैं, पंजाब के खेत के इलाके भी बड़े खूबसूरत हैं, हर इलाका खूबसूरत है, समुंदर के साहिल भी बड़े खूबसूरत हैं, हर जगह में अल्लाह ने खूबसूरती रखी है, इसका इनकार नहीं है। लेकिन कोई भी कहीं जाके ये नहीं कहता ए अल्लाह इस खूबसूरती में मौत दे दे। अगर ऐसी खूबसूरती कहीं है तो खुदा की कसम वो मदीना तो रसूल में है, वो मदीना मुनव्वरा में है, जहां जाके बंदा कहता है मौला मुझे मदीने से नहीं जाना, मुझे मदीने में मौत दे दे, मुझे मदीने में करार दे दे, मुझे मदीने में चैन दे दे। अल्लाह मिट्टी ना हो बर्बाद पसे मर्ग इलाही, जब खाक उड़े मेरी मदीने की हवा हो। नहीं अल्लाह मुझे इस खाक में खाक बना दे। बंदा उस वक्त मदीने में जाके लौटना नहीं चाहता, वापस नहीं आना चाहता। अम्मा आयशा सदीका के पास एक खातून आई और वो खातून आके कहती है अम्मी जान इल्तिजा करती हूँ, मेहरबानी हो जाए, इनायत हो जाए। क्या मेहरबानी हो जाए? खातून कहती है बड़ी दूर से चल के आई हूँ, मुझे जरा अपने नबी की कब्र दिखा दे, उनका मजार दिखा दे, उस मजार को देखना चाहती हूँ। अल्लाह अल्लाह, मोहब्बत हो तो ऐसी हो, प्यार हो तो ऐसा हो। अरे ये मोहब्बत रब ने बढ़ाई है, इसको कोई कम नहीं कर सकता, न खतीब कम कर सकता है, न मौलवी कम कर सकता है, न सियासतदान कम कर सकते हैं, न जोर और दबदबा कम कर सकता है, न कानून कम कर सकता है, न जुर्रत कम कर सकती है कि रब ने तमाम जुर्रतों से बड़ी जुर्रत मोहब्बत रसूल में रखी है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली,
और इस मोहब्बत में न दाढ़ी वाला देखा जाता है ना इमामे वाला देखा जाता है। अरे 3 मई को आमर चीमा को गैरों ने लटका दिया था, कलीन शेव था, लेकिन मोहब्बत की जुर्रत, मैंने कहा सबसे बड़ी जुर्रत होती है, मोहब्बत का हुस्न सबसे बड़ा हुस्न होता है, मोहब्बत में ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। आमर चीमा को पकड़ा गया, जिन्होंने खाके के खिलाफ जो है एहतजाज किया था, मारा गया, पीटा गया और उनकी हड्डियों को जो है तोड़ा गया, उनको जो है हर तरह की जो है वो अज़ियतें दी गई, लेकिन उस बंदे ने अपने बदन से रूह को निकलवा दिया, लेकिन मोहब्बत के चिराग को बुझने न दिया, मोहब्बत के चिराग को बुझने न दिया। तो मोहब्बत मुस्तफा रब ने इंसानियत के रगों में डाल दी है, मुसलमान के रग रग में डाल दी है। सियासतदान को नाज होगा अपनी सियासत पे, हाकिम को नाज होगा अपनी हुकूमत पे, गैरों को नाज होगा अपनी ताकत पे, लेकिन खुदा की कसम मुस्तफा के गुलाम कमजोर हो सकते हैं, बेदौलत हो सकते हैं, बेहुकूमत हो सकते हैं, इनके पास जो है जमाने की तमाम चीजें छीनी जा सकती हैं, लेकिन आशिक रसूल से अदब मुस्तफा नहीं छीना जा सकता, इज्जत मुस्तफा नहीं छीनी जा सकती, अजमत मुस्तफा का जज्बा नहीं छीना जा सकता। ये मोहब्बत वो मोहब्बत है, इसको कोई भी खत्म नहीं कर सकता। उस खतून ने जब कब्र को देखा तो रोते रोते उसकी रूह वही कब से उनसरी से परवाज कर गई। अल्लाह अकबर। मदीने की मोहब्बत कैसी मोहब्बत है। हजरत अबू यूसुफ मुहद्दिस कोटलवी कहते हैं, ये कोटली शरीफ के मुहद्दिस थे, ये कहते हैं कि मैं मदीने गया, जब मैं मदीने गया, मदीने में उशाक कैसे कैसे आते हैं यार, मोहब्बतों वाले आते हैं, वहां जाके मैंने देखा तो हजरत इस्माइल बिन यूसुफ निबहानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी बड़ी बड़ी किताबें हैं अरबी में लिखी हुई, देखा तो वो कब्र अनवर से बड़े दूर बाहर बैठे थे, और मैं बाबू सलाम से हाजिरी दी और फिर आया और आके कहने लगा हुजूर मैं आपसे बात करनी, उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, और फिर कहा कि मेरा नाम ये है और मैंने आपकी फुला फुला किताब पढ़ी है, फिर उन्होंने तवज्जो दी कि ये कोई आलिम है, और फिर पूछा जी पूछिए क्या चाहते हो, तो कहने लगे मैं पूछना ये चाहता हूँ, मैं जब से आया हूँ आपको रोजा मुबारक के करीब जाते नहीं देखा, ये वक्त के आलिम, अरे ये लोग थे हुजूर से मोहब्बत करने वाले, कहते हैं मैं इस लायक कहां के हुजूर के दरवाजे के सामने खड़ा हो जाऊं, मैं तो दूर ही बैठा अच्छा हूं, मेरी क्या हैसियत है कि मैं दरवाजा मुबारक के करीब जाऊं। अल्लाह 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 अल्लाह। ऐ मदीने जाने वालों, जब मदीने जाओ और अपना लिबास साफ सुथरा पहन चुको, खुशबू लगा चुको, अब तुम मस्जिद नबवी की तरफ चल पड़ो, तो उस वक्त तुम्हारी सोच में न दुनिया हो, न दौलत हो, न तिजारत हो, न औलाद हो, न अपना वतन हो, कुछ भी ना हो, अब जहनों में सिर्फ रसूलुल्लाह हो, सोचों में सिर्फ नबी पाक हो। मत दोस्तों के साथ हंसी मजाक में हाजिरी दो, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, तुम देखोगे मस्जिद नबवी के मनार नजर आएंगे। अपनी किस्मत पे नाज करो, सर को झुका लो कि अब शहंशाह आलम के दरबार में पहुंच रहे हो, ताजदारे दो आलम के दरबार में पहुंच रहे हो, जो वहां बकायदे हयात है वो देख रहे हैं, रब ने उन्हें कुव्वत और ताकत अता की है, तुम्हारे कदम उठें और कपकपी जिस्म पर तारी हो जाए, खताएं याद आ जाए, और वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका का वादा याद आ जाए, अपने दिल में कहो, रब से कहो प्यारे अल्लाह खताएं करके तेरे नबी के पास आ गया, और अताओं के दरवाजे अब तूने खोलने हैं, तेरा वादा है, वहां करीब होते जाओ, और बाबू सलाम से जब दाखिल होने लगो एक लम्हे के लिए रुक जाओ, और रुक के ये सोचो कि जैसे एक दरबार में सवाली जाता है ना, तो वो ठहर जाता है, और फिर उसको अंदर से इशारा होता है कि मियां अंदर आ जा, इस तरह वहां थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, और फिर सोचो कि अब इशारा हुआ है, अब अपना दायां कदम अंदर दाखिल करो, चलते जाओ, चलते चलते अब मवाजा तो रसूल तुम्हारे सामने है, निगाहों को झुका दो, आंसुओं को बहने दो, धड़कनों को अब धड़कने दो, अब खून की रवानी के साथ पेशी दो, हाजिरी दो, और अर्ज कर दो आका 1400 साल बाद पैदा होने वाला आपका गुलाम हाजिर है, खताओं के अंबार लेके आया आपका गुलाम हाजिर है, अताओं के सवाल लेकर आपका खादिम हाजिर है, आपका नौकर हाजिर है, आपका कलमा पढ़ने वाला हाजिर है, आपसे मोहब्बत करने वाला हाजिर है। ऐ अल्लाह के रसूल, अपने नवासों का सदका अता कर दो, अपनी बेटी का सदका अता कर दो, झोली फैलाओ कि इस दरवाजा करम से
واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یہاں نہیں ہوگی، جھولی بھر دی جائے گی، آؤ جھولیاں بھرو اور اپنے وطن خیر سے لوٹو. اللہ مکہ مدینہ کے آداب میں ہماری قسمتوں کو انوار عطا کر دے. آمین یا رب العالمین.